सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार दादा भगवान ना सिम जय जयकार दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जय જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, હાર્દિકભાઈ, જય કાંતાભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ મેં મોકલાવી દીધું, કંઠે બિરાજો છે. હા. ઓકે હાર્દિકભાઈ બોલાવો, અરુણાબેન ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતાબા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા પુનિતાજી તમે આવવાનું છે આજે? ભગવાનના અસીમ જય ઇનિશિયલી જયકાર હો. વિનેશ આનંદજીને લેટ થવાનું છે, ઓકે એટલે 10-15 મિનિટ્સ માટે હું છું, ઓકે ઓકે પછી he will join. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. અસીમજી કા બોલાવો, પુનિતાજી છોકરાઓ બાળકો આવે ત્યાં સુધી. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
ओ दाता भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાતા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। જય સચિદાન. પુલિનાજી કન્ટિન્યુ કરો, હજી કોઈ બાળકો આવ્યા નથી. અનલેસ કે અચ્છા, મને હાર્દિકભાઈ તો તમારે ટાઈમ કઈ થઈ ગયો 9 ક્વેશ્ચન વાગી છે? ગયા એટલે મેં 9 વાગ્યા એટલે મેં કીધું. એક મિનિટ, હાર્દિકભાઈ તમારે કઈ ક્વેશ્ચન છે? ના બતા દો. અરુણાબેન? ઓકે, તો આપણે એક મિનિટ, આપણે એકાદ આપણે સૂત્રો લઈએ. ઓકે, પુલિનાજી. હમ નિરંતર પરવશતામાં રહેવાનું, એવા જગતમાં શું રહેવાનું? પરવશતા એટલે આપણે ડિપેન્ડન્સી કયો, લાચારી કયો, એટલે આપણે અનુભવ કરી જ રહ્યા છે ને કે કેટલા બધા સંજોગને ડિપેન્ડન્ટ, શરીર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ. એટલે એવા જગતમાં શું રહેવાનું લોકોને, બહારના માણસ માટે, જે મહાત્મા માટે નથી આ વસ્તુ કે પરવશતા, ડિપેન્ડન્સી, લાચારી, ભૌતિક સુખની લાલચ છે એટલે આની પાસેથી સુખ મળશે, આની લક્ષ્મીમાંથી સુખ મળશે, વરમાંથી, વહુમાંથી, છોકરાઓમાંથી સુખ મળશે. એટલે એ સુખની માન્યતા લઈને આવેલા છે અને એના માટે પછી લાચારી બી કરવી પડે. હસબન્ડ બિહેવ સારો કરે તો મને સુખ મળે, એ આમ ના કરે તો સારું, છોકરો આમ કરે તો સારું, વાઈફ આમ કરે તો સારું. એટલે એ પરવશતા ને પરવશતા છે. પરવશતા લાગતી નથી, પણ જ્ઞાની પુરુષ આવું વાક્ય બોલે એટલે એને રિયલાઇઝ થાય કે હારું, તો વાત તો સાચી જ છે, હું સુખ સ્થળ જાઉં છું પણ મારે લાચારી કરવી પડે છે. એટલે પછી કે છે એવા જગતમાં શું રહેવાનું? એટલે એવો સુખ શોધો કે જેમાં પરવશતા ના હોય, લાચારી ના હોય. એવું સુખ શોધો કે જેમાં ડિપેન્ડન્સી ના હોય, સ્વતંત્ર સુખ શોધો, કાયમનું સુખ શોધો. આ જે સુખ છે રિલેટિવના બધા સુખો ટેમ્પરરી છે અને આધારિત છે. શરીર પર સારું હોય તો કરવામાંથી મજા આવશે, રોગ ના હોય તો સારી વસ્તુ ખાવામાંથી આવશે, આંખ સારી હોય તો ટીવી માંથી સુખ આવશે. એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર, શરીર ઉપર આધારિત છે અને એવી પાછા ટેમ્પરરી છે. એ જ વસ્તુ વધારે કરો, લાડવા ભાવતા હોય તો 1 મહિનો લાડવા ખાઓ તો પછી સુખ જતું રહેશે. એટલે એ બધા ડિપેન્ડન્ટ વાળા સુખ છે. પછી લોન વાળા સુખ છે, લોનને રિપેમેન્ટ કરવું પડે, પણ આ બધું લોકોને ખબર નથી અને જ્ઞાની પુરુષ એના જ્ઞાનમાં આ બધું જોઈએ એટલે આપણને સમજાવે છે કે આવું ટેમ્પરરી એવા સુખોની પાછળ શું કામ જાય છે? માનેલા સુખો છે, ખરેખર એમાં નથી. એટલે એવું આ સૂત્રમાં થોડું સમજાવવાનું. અને આપણે મહાત્માએ લેવું હોય તો મહાત્માએ આ વસ્તુ એવી રીતે લઈ શકાય કે આ સુખો ગમે, ફાઇલ નંબર એને આવા સુખો ગમે છે એટલે એને આપણે ડિસ્ચાર્જ થતો મોહ કહે. એટલે ત્યાં આપણે આપણી જાતને સમજાવી કે આવા હવે આ બહુમાં સુખની માન્યતા બદલાઈ, જ્ઞાનની. જૂની જે માન્યતા ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે આવે છે હજી ખાવામાં
પિક્ચરમાં સુખ, વિષયમાં સુખ, લક્ષ્મીમાં સુખ, સંપત્તિમાં, વસ્તુમાં, ટીવીમાં, મોબાઈલ, કારમાં, બંગલામાં, કપડામાં, જ્વેલરી, જાત જાત જગ્યાએ જે સુખ છે એ ડિસ્ચાર્જ છે. ફાઇલ નંબર 1 ને ગમે છે. હું હવે એના પક્ષમાં ઓકે, વેરી ગુડ. છે. આમાં ક્વેશ્ચન હતા પણ આપણે આવી ગઈ. હિતાક્ષીબા, હા ઓકે. જય સચિદાનંદ હિતાક્ષીબા. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો સાઉન્ડ નથી આવતો, હવે આવ્યો? બહુ ફેઇન્ટ આવે છે. આવે છે, આવે છે. બોલો. પુનિદાન સંભળાય છે? હા, મને સંભળાયું. ઓકે, મારે પ્રોબ્લેમ. ઓકે, પુનિદાનજી શ્રીમંત બોલાવો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો વરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો વિમાણમ, નમો સીતાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સર્વ ભાવપણાસ, સર્વ પાવપણાશણો, મંગલાણં ચ સૌસ્ય, મંગલાણમ ચ સવ્વેસી, પરમં હવે મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિતાક્ષીબા, ડેલી પ્રેયર. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी कृपा करें। हे दादा भगवान, मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को आने की पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सीखते रहूंगी। मैं बुरी समाचार को सबसे हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का प्रयोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में चंचल और प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दाता भगवान की जैसा मैं और पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। इस समय में मुझे अलग आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पर स्टडी हाँ, प्रेयर. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दाक्ष. हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हम हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे. ओके, निताक्षी सेपरेशन प्रेयर. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, હિતાક્ષીબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હિતાક્ષીબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાदा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો, હિતાક્ષીબા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके, जय सच्चिदानंद. आज कोई ने गुस्सा आवेलो, किसी को गुस्सा आया था निताक्षी बा?
ना दक्ष दादा सोच रहा हूँ। हाँ दादा सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ आया था कि नहीं। क्या हुआ था? दादा अभी सोच रहा हूँ कि आया था हाँ कि नहीं। सोच रहा हूँ। ओके 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 ओके। आपका वीकनेस का प्रेयर क्या है जक्सिबा? मेरे वीकनेस का प्रे वो आलस का था। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। हे दादा भगवान, हे દાદા ભગવાન, હું જ્યારે પણ હિન્દીમાં બોલું કે ગુજરાતીમાં? જે તમને ફાવે, જે दादा તમે हे દાદા ડેઈલી કરતા હો. ઓકે whatever daily. Yeah. હે દાદા ભગવાન, હું રોજે જ્યારે ભણવા બેઠું તો મને આળસ કેમ આવે છે? ભણવા બેસતી વખતે મને ઊંઘ કેમ આવે છે? હે દાદા ભગવાન, હવે ભણવા બેઠું તો મને ઊંઘ ના આવે, આળસે ના આવે, સારી રીતે ભણી શકું એવી તમે મને શક્તિ આપો. पेपर दादा वो पढ़ाई में इंग्लिश का था। हाँ तो बोलो ना जल्दी जल्दी. हे दादा ने में इंग्लिश में जो है ना मेरी कमजोरी है वो है ना, आप ऐसी शक्ति दे कि है ना मेरी वो इंग्लिश में ना मेरा पावरफुल हो जाए। ओके दक्ष दादा आज मेरे को कोई भी चीज में गुस्सा नहीं आया था किसी पर भी। ओके और दादा मेरी ये प्रेयर है कि हे दादा भगवान, आप मेरे को ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ और उसमें मैं अच्छे से सिंसियर बन पाऊँ। हे दादा भगवान, आप मेरे को ऐसी शक्ति दीजिए सच्चिदानंद। कितने दफा किया था प्रेयर? दादा 3 टाइम। किजाक सेवा अनम्यूट करो. द पर दादा 2 टाइम्स। ઓકે ચાલો आज का પુરીદાનજી આજનો टॉपिक છે ભોગવે તેની ભૂલ. आज किसी ने स्टडी किया है, पढ़ा है कुछ? हाँ पर दादा। अच्छा बोलिए दादा शू हाँ दादाजी क्या बोलते हैं? मुख्य મોક્ષ જશે એમાં દાદાશ્રીએ કહ્યું જ્ઞાની પુરુષનો એક જ શબ્દ સમજી જાય અને પકડી બેસે તો મોક્ષે જ જાય. કોનો શબ્દ? જ્ઞાનીનો. એનાથી કોઈને કોઈની સલાહ ના લેવી પડે કે કોઈની ભૂલ આમાં ભોગવે એની ભૂલ. ओके अब शू समझाया તમે? आपको क्या समझ में आया? कि दादा जो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं हमें समझाते हैं सत्संग में, वो वाक्य और सब कुछ हम शब्द पकड़ के बैठ जाए ना तो हमें किसी के साथ है ना टकराव नहीं होगा। ओके यथाक शिवा हाँ, दादा उसमें ऐसा कहते हैं कि नेचर कोर्ट में जो लॉ है वही नेचुरल लॉ यहाँ पर दादा ने हमें समझा कर बताया कि वहाँ का जो नेचुरल लॉ है वही वो नेचुरल लॉ ही भोगवे तेनी भूल है, युक्त उसकी भूल। ओके ओके वेरी गुड. पुलिसान जी हाँ हाँ आपने सुना ये सब, तो उन लोग का प्रेयर सुना, उन लोग का वीकनेस सुना, दादाजी क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करो. नहीं, बहुत सही है ये। हिंदी में बात करूँ ना? हिंदी हिंदी हिंदी. हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये भोगवे तेनी भूल एक सनातन सिद्धांत है, कायम का सिद्धांत है। एक कुदरत का कायदा भी बोल सकते हैं, एक तरफ से नेचुरल लॉ होता है। और इस बात को अगर हम समझे तो हमारा गुस्सा भी कम होता है, हमको दूसरे पे जो द्वेष आता है, जो हम चिढ़ जाते हैं, वो भी कम हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए हम खुद जवाबदार। हम खुद, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी हम जवाबदार।
और हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है जो हमको पसंद नहीं आता, तो उसके लिए भी हम खुद ही जवाब। इसीलिए दादा ने बोला कि अगर आपको भोगवटा आता है तो आपकी भूल है। मानो इसका एक एग्जाम्पल ऐसा है कि हमने जो कॉज किए है, बीज डाले हैं, उस हिसाब से हमको परिणाम या फल मिले। हमने किसी को सुख दिया है तो हमें सुख मिले, किसी को दुख दिया है तो हमें दुख। लेकिन होता क्या है, जब हम दुख देते हैं या हम गलत काम करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और उसका जब परिणाम आता है, फल आता है, तो वो फल काफी समय के बाद, इसलिए हमको याद नहीं रहता है कि हमारे कौन से कॉज की वजह से, किस कारण की वजह से हमको ये भोगवटा है। और हमको लगता है कि जो हमें दे रहे, कि हमारे टीचर है, हमारे माता पिता है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे भाई बहन है, कोई भी अगर हमको दुख देने का निमित्त बनता है, तो हमको लगता है कि इसने मेरे को मारा, इसने मुझे बराबर अपशब्द बोला। तो देखी थी बात तो सही है, इसने बोला और उसके वजह से दुख भी होता है। लेकिन दुख होता है तो समझना हमने किसी और को दुख दिया। जो व्यक्ति आज हमें दुख दे रहा है, जरूरी नहीं कि उसी को हमें दुख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने किसी से गाली नहीं दी, लेकिन कोई आदमी उसको गाली दे रहा है। तुमने किसी को मारा नहीं, लेकिन कोई मार रहा है। तुमने किसी को चिढ़ाया नहीं, लेकिन वो चिढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी और अपनी वाणी से दुख दिया है, उसकी मस्करी की है, उसके वजह गुस्सा किया, लेकिन कहीं और किसी दूसरे, और उसका फिर भोग जो आता है, उसका जो रिएक्शन आता है, वो दूसरी व्यक्ति के पास। हमने मम्मी को परेशान किया, उनका सुना नहीं, छोटे भाई है, छोटे बहन है, उसको परेशान किया, मजाक की, मारा, या किसी को, तो वो आपके सामने रिएक्शन नहीं दे, वो आपको सामने नहीं, लेकिन फिर उसका रिएक्शन दूसरे व्यक्ति के पास से है। फॉर एग्जाम्पल, घर में छोटे भाई को हैरान किया, तो रिएक्शन फिर स्कूल में फ्रेंड के पास से है, फ्रेंड तुमको मारा, टीचर के पास है, कहीं दूसरी जगह से भी आ सकता है। और जब वहां से आता है, फ्रेंड के पास से आता है या टीचर के पास, तो हमको पजल होता है, मैंने तो इसको मारा नहीं, ये क्यों मारा। लेकिन वहां पे ये दादा भगवान का प्रिंसिपल, ये दादा भगवान का सिद्धांत, भोगे तेने भोग को काम में आया कि फ्रेंड ने मेरे को मस्करी की, फ्रेंड ने मेरे को मारा, तो भोगवटा मुझे आया, तो मैंने भूल की होगी। अब कहाँ भूल की है वो शायद पता चले या शायद पता ना भी चले। फ्रेंड के साथ नहीं किया है, चिड़ा है, आप फ्रेंड के साथ नहीं चिड़े, तो आया कहाँ से। घर में किसी को चिढ़ाया होगा, घर में किसी को दुख दिया, तो उसका जितना दुख आपको आपके फ्रेंड के पास है। इसलिए कहाँ से भी दुख आता है, वो बहुत आता है, नहीं पसंद है, ऐसे ऐसे बातें, तो समझ जाने का कि भोगवे तेनी भूल, हमको भोगवट आया, यानी हमारी कोई भूल अवश्य होगी, 100% होगी। और हमें अगर हम ढूंढेंगे तो शायद मिल भी जाएगा कि हाँ, इधर मैंने उसको हैरान, आज हैरान किया, ऐसा जरूर नहीं, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले भी किया, उससे ज्यादा भी किया, कभी भी किया, तो उसका रिएक्शन फिर लेट आता है। और इससे जब भी होता है तो समझना हमारी भूल का रिएक्शन, और हमें सुधरना है, हमें देखना है। हमने कहा आप ये सब जो प्रेयर बोलते हो, मुझे शक्ति दो, पढ़ाई की शक्ति दो, समझने, मेरा ट्राई दूर हो समझने,
मैं सेपरेट हूँ। तो ये सब जागृति बढ़ाने के लिए और वहां से दादा को प्रे करने के लिए, दादा भगवान मेरी भूल मुझे समझाए और दोबारा मैं ऐसी भूल ना करूँ। अगर आपको किसी ने मस्करी की तो और आपको दुख हुआ तो ये नक्की करो कि दादा भगवान मुझे दूसरी बार किसी की मस्करी ना करने की। किसी ने गाली दी तो बोलो हे दादा भगवान मुझे किसी को गाली ना देने की। अथवा हे दादा भगवान मेरे वाणी से, मेरे वर्तन से या मेरे विचार से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। ऐसी भावना करोगे तो तुम दुख देना बंद करोगे और भोगो हटाना। तो भोगे नहीं भूल, ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, जो कुदरत का नियम, वो ये कहना चाहता है। और जब भी कोई हमको दुख देता है तो तुरंत बोलने का भोगे नहीं भूल, हे दादा भगवान ऐसी भूल करके ना करें। तो आपका ज्ञान भी अच्छा रहेगा, आपको बदला नहीं लेना पड़ेगा, आप किसी को दुख नहीं दोगे। और किसी को दुख नहीं दोगे तो आपको, चलो अभी मीनेश आनंद जी आ गए। मीनेश आनंद जी, मीनेश आनंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आपके बच्चे लोग, जय आपने एक मिनट पर क्या बोला? पुलिदानंद जी ने क्या बोला? हाँ दादा की ये जो भोग उसकी भूल है ना, वो है ना, वो कुदरत का कायदा है। और अगर हम किसी के साथ है ना कुछ गलत करेंगे, जैसे कि किसी को मारा, तो वो भी हमें कभी ना कभी मारेगा। और वो गलती है ना कभी कभी भी हुई हो, आज नहीं, महीने पहले, साल पहले हुई हो, तो है ना सुधार देने की उसका ओके, भोगवट आ जाता है। वेरी गुड। दक्ष। दादा, जो भोगते उसी की भूल, मतलब जैसे जो अपन ने गलती करी है वो अपने पास वापस आती है। जैसे यदि मैंने किसी का पेन चुराया है तो दादा वो थोड़े समय बाद अब मेरा पेन भी चोरी हो जाएगा, चाहे वो मेरे 4 साल बहुत पहले चुराया हो, 2 क्लास पहले चुराया, और जब भी वो चोरी हो जाएगा। ओके, मेरे मेरे दादा अभी कुछ ऐड करने का है आपको? बिफोर एक एक आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। पर वो ने अच्छी तरह से समझा है और अच्छी तरह से वापस भी रिपीट किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। नॉमिनेशन प्लीज टेक ओवर। जय सच्ची। जय सच्चिदानंद। भोगे देने को आप तेरे भूल पर छोड़ पाइन चुआ नहीं, में बराबर। नहीं, अच्छी आपने अच्छी तरह बात एक्सप्लेन करी है, करो। मतलब मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। हम्म, ओके, तो उन लोग को ठीक है। पूछेगा कि आप आज का दिन कैसा रहा, पर आपने कुछ भुगता किया, आपने मालूम पड़ा कि मेरा नहीं है, मेरा है, को सामने वाला कुछ हुआ आज? हाँ दादा, आज हुआ था। जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मेरी आज बैटिंग नहीं आई, तो मैंने सोच लिया कोई बात नहीं, चलो बॉलिंग आ गई ना, कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। दक्ष। दादा, आज स्कूल में मैम ने मेरी मम्मी से कंप्लेंट की थी, तो दादा वो मेरे को जब लगा कि मेरी गलती है, उसका ही वो आया है पश्चाताप। ओके, हिताक्षीबा। हिताक्षीबा। ओके, हिताक्षीबा को प्रॉब्लम है ये। हिताक्षीबा। ओके, मिनेश दादा आपने सुना ना? मिनेश दादा उन लोग का एक्सपीरियंस सुना? एक्सपीरियंस सुना मैंने, अच्छा, बहुत ओके, अच्छी बात है। तो उस ये उसमें आपको समझ में आया कि भोगे उसके बोल, तो भीतर आपको रहेगा भी अभी दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा रहता है ना। हाँ दादा। दादा, हाँ,
अब आपको आपकी गलती भीतर चुभती चुभती है तो अच्छी बात है ना। वो चुभना बंद हो जाए तो प्रॉब्लम है। लेकिन आपको आपकी गलती चुभती है, और चुभती है तो जैसे कांटा चुभता है तो क्या करते हैं, कांटे को निकाल देते हैं ना, कि पैर में ही रखते हैं। निकाल निकाल देते। देते। निकाल देते, क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि जहां तक पैर में है वहां तक वो चुभता ही रहेगा। ऐसा हमें ज्ञान फिट हो गया है समझ में। उसी तरह से यहाँ भी कहाँ तक, कब तक भोगना पड़ता है, कि जब तक आपकी भूल है वहां तक आपको भोगना पड़ता है। हाँ आपको हितेश हिताक्षी आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ था आज? भुगते उसकी भूल में आज। हाँ, आज जब तब मैं ट्यूशन क्लासेस में गई थी, तो वहां पे मैम ने हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, यानी कि वो एक एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चन पूछा था और वो मुझे नहीं आया। तो तब मैंने सोचा कि मैंने लर्न नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं आया आज। आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए कि क्या? लर्न किया था लेकिन मैं भूल गई वापस। तब याद नहीं आया जो पूछा वो वाला। मेरे दादा उसको चाबी बताओ कि ये याद क्यों नहीं आता है। याद क्यों नहीं आता है? कि जहां तक दर्शन पर के आवरण नहीं हटते हैं वहां तक याद नहीं रहती कोई भी बात। तो उधर निश्चय करने हुए ये आवरण नहीं क्यों टूटे। तो आगे एग्जाम्पल दिया था ना, कि आपको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कौन सी माला फिराते हैं, कि मैथ्स हमें बहुत मैथ। डिफिकल्ट है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। हाँ आमतौर पर दादा। ऐसा ही करते हैं। हाँ सही सही मायने में क्या होना चाहिए, कि कि नहीं, मैथ वो तनिक ये तनिक भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो मुझे समझ में नहीं आएगा तो टीचर को पूछ लूंगा, मेरे फ्रेंड्स को पूछ लूंगा, पापा मम्मी को पूछ लूंगा, लेकिन मैं सीख लूंगा। और मेरे अच्छे मार्क आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा निश्चय है आपका, तो आपका वो जो अंतराय है, जो दर्शन पर का आवरण है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। और फिर बाद में याद रहेगा। याद रहता है वो पढ़ने से या शक्ति मांगने से ही पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन याद बात समझ में कब बैठेगी, तो कि जब आपकी समझ पर के दर्शन पर के आवरण हटेंगे तभी, टूटेंगे तभी। देखो वो तोड़ना तो आसान है ना, केवल नक्की करके शक्ति मांगने की है ना, और क्या करने का है। आसान नहीं है। हाँ जी। ऐसा नहीं है, है? कोई बोलते नहीं है पर टैक्सी दक्ष। दादा ऐसा। हाँ दक्ष, दादा इजी नहीं है प्रार्थना के। इजी है। ओके, टैक्सी आप शक, क्यों सोचते हैं? पता नहीं इजी है या हार्ड तोड़ने का। तो आपने बताया ना। हाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात समझ में नहीं आती, केवल शक्ति मांगने का, दूसरा करने का क्या है उसमें। हाँ आपका तो निश्चय है, आपका निश्चय है तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। नहीं क्यों होगा। तो मिनज दादा क्या होता है, देखो, ऐसे निश्चय मैं करेगा। छोटे, मिनज दादा ये निश्चय हाँ करेगा तो जब पढ़ेगा तो आपको सब ग्रहण हो जाएगा, ऐसे होता है। हाँ, मतलब निश्चय किया है तो आपके दर्शन पर के आवरण टूटना शुरू होगा ना। ये एक छोटा एग्जांपल दो आपको। आपने चलना शुरू किया तो कितनी बार गिर गए थे? बहुत दादा बार। 7 बार। बहुत बार गिर। तो क्या उस दिन 1000 ऐसा बोलते थे,
कि अभी मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, कभी भी चल नहीं पाऊंगा, ऐसी माला फिराते थे? नहीं दादा। इधर नहीं। से वो ख्याल में आ रहा है? देखो उधर तो पापा मम्मी भी हमें चाटा नहीं मारते थे कि भाई तेरे में अक्ल नहीं है, समझता नहीं, गिर जाता है बार बार, ऐसा करते थे? नहीं दादा। नहीं करते हैं। क्यों? देखो वो जानते हैं कि वो चलना शुरू करेगा, गिरेगा, खड़ा होगा, वापस गिरेगा, खड़ा होगा, ऐसा करते करते सीख लेगा। हाँ यहाँ भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, उधर क्यों काम होता है? तो वो अपना निश्चय है कि नहीं दूसरे भी चल सकते, मैं भी चल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं चल सकता? हाँ मैं दादा। भी चल पाऊंगा। ठीक है, वो निश्चय है, इससे गिरने का फिर अंतराय रहता नहीं है। हाँ हमें गिरने की नौबत आती नहीं है फिर। हाँ। ठीक है, यहाँ यहाँ हमें परेशान नहीं होने का है। मैं तो यहाँ तक बोलूँ कि चलो मान लो कि गलती से फेल भी हो गए तो क्या हो गया, लेकिन उसमें से तारण तो निकलना चाहिए ना, कंक्लूजन तो आना चाहिए ना। हाँ कंक्लूजन दादा। निकलेगा तो वो गलती में से बाहर निकलेंगे ना। हाँ दादा। हाँ दादा। देखिए, ये बात समझने की, हर एक संयोग में हमें पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। तो आगे कौन बढ़ सकता है? जो पॉजिटिव हो वही। हाँ। हाँ दादा। तो क्या? हिताक्षी बा मालूम पड़ा है ना आपने, क्या आपने अभी कैसे रेक्टिफाई करने का? हाँ। क्या करेंगे आप अभी? दादा से प्रे करेंगे, शक्ति मांगेंगे। देखो, किस किस ये सत्संग स्टार्ट करते हैं तभी पढ़ाई के लिए शक्ति कौन सी मांगते हैं? पढ़ाई करने की शक्ति तो ऐसा बोलते हैं कि मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए, मेरा अंतराय, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, वो सब टल जाए, टूट जाए, ऐसी हमें शक्ति तो ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ दादा। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कि ये हो गया तो उसकी बाय प्रोडक्ट में पढ़ाई तो आपको आसानी से याद रहेगी। बात ख्याल में आ रही है? तो मालूम पड़ गया? हाँ, तो ये अभी एक्सपेरिमेंट करो और कल के लिए बताना एक्सपेरिमेंट कैसा चलता है। और कल है अथर्वण ताड़ी है। ओके। आप जैसा डिसाइड करेंगे ना, उस प्रकार का रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। हाँ। हाँ ये कोई डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट बात नहीं है। तो डिफिकल्ट कहाँ तक लगता है कि जहां तक हम उसके पीछे पड़े नहीं है वहां तक। हाँ। हाँ। ओके, तो कल एक्सपेरिमेंट करने का। ओके। ऐसे तो इसके ऐसे थोड़ा बारे में भीतर भीतर थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी लगता है ना, तो मिरर के सामने खड़े रह के खबा थप थपाने का, बोलने का कि भाई हम आपके साथ में हैं, दादा हाँ। भगवान हमारे साथ में है, फिर क्यों डरते हो? आप नक्की करो, सब याद सीख लेंगे, आप सब याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हाँ दादा। इतक से बात ख्याल में आ रहा है? हाँ। ठीक है, उधर पानी में नहीं बैठ जाने का है, हमें तो तैर के बाहर निकलने का है। वो पानी में डूबने के लिए थोड़ा है हम। हम्म। तो संसार के लोग डूब जाए तो चलता है, पर दादा का ज्ञान, दादा की समझ मिलने के बाद हम डूब जाए तो फिर हमारे जैसे कच्चे कोई है ही नहीं और कोई। बात मालूम ख्याल पड़ में आ गया रही है? सबको? हाँ, सबको मालूम पड़ गया? तो कल हाँ के लिए दादा। चलो एक्सपेरिमेंट करने का है। ओके। कि ये प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय आमेन। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, मिनिश जय दादा। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।